Let's start today's class, guys. Today is the first real class, as you have said on that day. So the topic is calendar. And before starting the topic, I just want to discuss you guys something. Uh, can you tell me the relevance of this topic? Why this topic is there in the syllabus, and why we need to study about calendar? What is the importance of this topic? Why they have given this topic in the syllabus? Why we should know about calendar? Anyone? Any idea? Uh, uh, to trace back. Oh, to travel in the past. All right. Anything else? Anyone? To plan anything? Okay. All right. Online students? Yes. Yes, everyone. आप लोगों को क्या लग रहा है? Online students? To be more observant. Yes. Guys, let me tell you. The purpose is only just to test how much observant you are in your day-to-day life. Do you know about calendar? Right? Calendar is a very essential part of your life. Calendar, clock, or blood relation, or direction sense. Right? They all are the very essential part of your life. Day to day, you use these things. But how much observant you are with these things, right? This is something that we have to discuss today. And you will obviously get to know कि यार ये भी होता है, ये भी होता है, ऐसा भी होता है, right? Okay. All right, everyone. Aditya Singh, to make decision properly, sir, please upload the syllabus. Okay. Syllabus and the schedule, everything will be given to you guys very soon. Okay. It might be there already, but I'll check it with the team. Okay. Yes. All right, everyone. So now, you just tell me, आज डेट क्या है? 25th of June. All right. ठीक है. देखिए, थोड़ी देर के लिए, if I assume that today is first, right? Today is first, and let's say it is Monday today. Right, everyone? Let's say today is first, and it is Monday today. It is visible to everyone. पीछे तक दिखाई दे रहा है? ठीक है. या मैं इसको थोड़ा सा और ये करूँ, थिक करूँ थोड़ा सा पेन को. सही है? Okay. ठीक है. All right. So friends, today is first, and let's say it is Monday. Next Monday will occur on which date? 8th. After one complete week, it will be on 8th. 8th will be again Monday, right? Okay. Okay. So 8th will be Monday once again. All right. And next Monday will be on 15th, like +7. And then plus 7 is 22nd, and +7 is 29th. Correct, everyone? So if on 1st it is Monday, then on 8th it will be Monday, on 15th it will be Monday, on 22nd it will be also Monday, and on 29th it will be also Monday. So let me write 1st over here and 8th over here. Everybody fine? Okay. Okay. And why it is happening? Because a week is of 7 days. So after 7 days, the same day gets repeated. Correct, everyone? All right. So just think about it. This is what? This is plus 7 days. This is plus 14 days. This is plus 21 days. And this is plus 28 days. Everybody fine? Right. 7 means 1 week. 14 means 2 weeks. Then 3 weeks. And then 4 weeks. Everybody agreed? Right? So after 1 week, the calendar gets repeated. After 2 weeks, the calendar gets repeated. After 3 weeks, the calendar will get repeated. After 4 weeks, again the calendar will get repeated. After 5 weeks, again the calendar will get repeated. So after complete number of weeks, calendar will get repeated, guys. Is it clear? Everybody fine now? The first point is clear. After complete number of weeks, the calendar will get repeated. The same day will occur. Done? Okay. Now, if I talk about a normal year, there are two types of year. One is normal
another is leap. Now I'm discuss about the normal year, right? Let's discuss about the normal year first. Okay. How many days are there in a normal year? Everybody knows about it, 365, right? How many weeks are there? 52, right? Everybody. This is what? This is 365 days. I mean, one normal year is consists of 365 days, right? And it has 52 weeks, as you said. Is correct. 1 week has how many days, guys? 7. If I multiply 52 with 7, what will happen? You are going to get 364. Okay. Okay. So 364 days, everybody. Done? But a normal year has 365 days. So which means what? A normal year is the combination of 52 weeks plus 1 more day. Is it clear, everyone? Right? So a normal year is the combination of 52 weeks plus 1 extra day. And this extra day is known as odd day, everyone. Right? This extra day is known as odd day. Right? After the complete number of weeks, the day which are left, they are known as odd day. Suppose that, everyone, suppose that if I ask you, in 8 days, how many odd days will be there? What will be your answer? 1. What you have done, you have divided 8 by 7 and the remainder is the number of odd days. Correct? Suppose that if I ask you, in 10 days, how many odd days are there? Everybody, in 10 days, how many odd days are there? Right? So what you have done, you have divided 10 by 7 and the remainder is known as the number of odd days. Everyone fine now? Now suppose that if I ask you, in January, how many odd days are there? In the month January, how many odd days are there? Then January has 31 days in total. 31 will be divided by 7. What is the remainder? So January has 3 odd days. Correct, everybody? Okay. Currently we are in June. Okay. June has 30 days. How many odd days it has? So June month has 2 odd days. January month has 3 odd days. अब आप सभी का कैलकुलेट कर लेंगे. Everybody. For February, that depends upon the year is a leap year or not. So if the year is non-leap year, then it has 0 odd days. I repeat, February क्या होता है? 28 days होते हैं, 29 days होते हैं. Right? So if February has 28 days, it will have 0 odd days. If February has 29 days, it will have 1 odd day. I mean, depending upon the leap year. Everybody okay now? Okay. So you know how to find out the leap odd days? Correct, guys? Okay. Now, I just want to remove this part. Okay? Okay. Shall I remove this? Itna niche wala. Chalega? Okay. After that, everyone, what we have discussed, a normal year is the combination of 52 weeks and 1 odd day. Right? A normal year is the combination of 52 weeks and 1 odd day. Just tell me one thing. Or you can say this is 364 plus 1. Right? Guys, just tell me one thing. Suppose that मैं 2026 की बात करता हूँ. We are running it this year, right? 2026. 2026 is a non-leap year. Everybody knows about it, right? मुझे एक बात बताइए. I don't know 1st January को क्या था. आप में से किसी को याद है क्या? ठीक है. मुझे भी नहीं याद है, आपको भी नहीं याद है, doesn't matter. 1st January, let's say it was Thursday, right? Because today is Thursday, so let's say it was Thursday. Okay, guys. Let's say 1st January,
This is just we have assumed, right? I don't know what it was. Let's say 1st January 2026 was a Thursday, right, everybody? Now, as we have observed here, if we add 1 week or 2 weeks or 3 weeks or 4 weeks or n number of weeks, Thursday will get repeated. Yes or no, guys? Right. And a very interesting thing is what? A non-leap year is of 365 days, which is the combination of 1 plus 364 days. So 1st January, if I'm assuming it as first day of the year plus 52 weeks, right, everybody? First day of the year plus 52 complete weeks. And suppose that this was Thursday. Acha, guys, what will happen here? What will happen here? If on a particular date, if you are adding complete number of weeks, the same weekday occurs once again. We know that, right? So this will be Thursday once again. Everyone, yes or no? Right. Acha, by the way, 52 weeks means what? It is 364. Everyone, this is what? This is 364 days. Correct? So 1st Jan is 1 day plus 364 day is equal to 365th day of the year. Right? Guys, what is 365th day of the year? Of a normal year, it is 31st December. The last day of the year. Yes or no? Right. This is 31st December. Right. Or you can say the last day of the year. So guys, here what we have proved. An ordinary year starts and ends with the same day of the year. Yes or no? Right? A normal year starts and ends with the same day of the year. Guys, agreed? ठीक है. और वैसे भी लाइक आपने एक बात ऑब्जर्व किया होगा कि अगर ये 1st जनवरी थर्सडे को है तो नेक्स्ट ईयर का जो 1st जनवरी होगा वो फ्राइडे को होगा. ऐसा कुछ आपने सुना है कभी? राइट. अब समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो अगर नेक्स्ट डे का 1st जनवरी फ्राइडे को है तो 31st दिसंबर क्या हो गया? थर्सडे हो गया. एंड द ईयर वाज स्टार्टेड विद थर्सडे ओनली and it is ending with the Thursday only, right? So a normal year starts and ends with the same day of the week. How many of you already knew this information? 1, 2, 3, 4. Only 4 students? Okay. Now guys, this is the relevance of the topic now. How much observant you are in your day-to-day life. That's it. कि कैलेंडर के बारे में आप ये बात जानते भी हैं कि एक ऑर्डिनरी ईयर आप अभी तक आप लोगों ने कितने ईयर्स देख लिए अपनी लाइफ में? आई थिंक 22 से नीचे तो यहाँ कोई नहीं होगा. तो कम से कम 22 23 ईयर्स अभी ने देख रखे हैं अपनी लाइफ में. बट डिड यू नो दैट कि जिस दिन पे स्टार्ट होगा उसी दिन पे खत्म भी होगा, राइट? एनीवेज, ओके फाइन, ठीक है. Sumit is saying, sir, I have observed this when I was in 9th. And because I was observing about my birthday. Okay, that's great. Okay. Darshnika is saying, sir, I knew already. Okay, that's good. Alia is saying, I didn't know. Okay, that's great, guys. Okay. Okay, everyone. It is clear now. Okay. Acha. Now, you just tell me one more thing. A normal year starts and ends with the same weekday, right? A normal year has one odd day, right? About normal years we are discussing, right? A normal year has one odd day. It starts and ends with the same day of the week. It is also correct. Now one more thing, friends. As we all know that year has 52 weeks. Okay? One year has 52 weeks. So all the weekday will be occurring 52 times in those 52 weeks. मंडे भी 52 टाइम्स आएगा, ट्यूसडे भी 52 टाइम्स आएगा, थर्सडे भी, वेडनेसडे भी, जो भी है, they all will occur 52 times. But a normal year
does not have only 52 weeks, it has one more day, right? So what we can say about it, everyone? What we can say about it? Yes, first day of the year will be occurring 53 times. Rest all will 52 times. Everyone, yes or no? Right? आपको इसमें से अगर कुछ नोट करना है तो बताइए, एल्स जो बातें हमने अभी की हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में लिखी हुई है, मैं अभी आपको लिखने का टाइम दूंगा। इसमें से कुछ नोट करना है क्या अभी, या कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए। एनीवन इन द क्लास, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन, एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनीबडी? नो? फिर से बोलिए। बिकॉज ये 365 डेज है ना। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि आपको ये पता है कि ये डेज कैसे डिसाइड होते हैं कि 365 है, 364 है, ये पता है, राइट? इसको समझिए कि एक्चुअली क्या होता है कि वो 24 आवर्स कंप्लीट नहीं होते, वो कुछ एक्स्ट्रा टाइम होता है, और उसमें जो एक्स्ट्रा टाइम होता है वो 4 ईयर्स में 1 डे कंप्लीट करता है, लेकिन वो भी एग्जैक्टली 6 आवर्स नहीं होते। वो अभी मैं आगे जाऊंगा, आपको बताऊंगा सब कुछ, ठीक है? ये भी क्लियर हो गया, राइट? ओके, शैल वी मूव नाउ एवरीवन? ओके, odd day means after complete number of weeks, the extra days which are there is known as odd days. Okay everyone, shall we move now? ठीक है, इसके बाद देखिए, these are the 3 points. I want you guys to write down these 3 points. Yes everyone, ये 3 points आप एक बार लिख लीजिए. I want you guys to write down these 3 points in your copy. And I think notes have been shared with you guys. और देखा नहीं अभी आप लोगों ने? I think notes have been already shared with you guys. तो उसमें भी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं वैसे, right? Hanif is asking, sir, last day will be Thursday or Friday? If the year started with Thursday, I'm talking about a normal year. If the year is started with Thursday, the last day will be Thursday only. And if the year is started, I mean, if the 1st January is Thursday, then 31st December will also be Thursday. I'm talking about the normal year. Okay? All right. Is it clear, everyone? Shall we move now? Okay. Friends, now I'll be moving towards the leap year. ठीक है? मुझे एक बात बताइए. For the first point, what we can say about a leap year? How many? A leap year will have 2 odd days. Why? Because it has total 366 days. Right, everyone? So a leap year will have 2 odd days. Right? ठीक है, अभी लिखिएगा नहीं, ये पॉइंट्स आएंगे आगे. A leap year will have 2 odd days. Starts and ends with the same day of the year की जगह वहां पे क्या लिखा जाएगा, ये बताइए. It ends with the next day of the first day of the year. इसको समझिए फ्रेंड्स. जैसे नॉर्मल ईयर में क्या होगा, नॉर्मल ईयर अगर थर्सडे से शुरू होगा, नॉर्मल ईयर में 1st January इफ इट इज ऑन थर्सडे, देन 31st December will be also on Thursday. Everyone, yes or no? It is in case of normal year.
right? It is in the case of normal year. But in the case of a leap year, if it starts with Thursday, it will be ending with Friday. Is it clear, everyone? Yes or no? Because it has 366 days in total. That's why. Right, everybody? Any doubt? No? Clear? Everyone? ठीक है? Okay. अच्छा. यहाँ पे क्या होना चाहिए? Third point for a leap year. Same. Third point, guys. For a leap year, what it will be? हाँ हाँ. Everyone, first 2 days, 1st January and 2nd January will be occurring 53 times and rest other days will be occurring 52 times. Any doubt, friends? Any confusion? देखिए ऐसा है, जो नॉर्मल ईयर है ना, नॉर्मल ईयर में है 365 डेज, राइट? So this is actually 1 plus 364. 1 plus 364 or you can say 1 plus 52 weeks. अब देखिए, actually in those 52 weeks, all the weekdays will be occurring 52 times and this plus 1. So the first day will be occurring 53 times. Correct, everybody? But in a leap year will have 366 days. This is 2 plus 52 weeks. Correct, everyone? 2 plus 364. All right. Okay. So all the weekdays will be occurring 52 times here, but first 2 days, which is 1st January and 2nd January, will be occurring 53 times. Everyone fine now? Okay. Acha. How you are going to recognize an year is a leap year, guys? Okay. Friends, मुझे एक बात बताइए. Oh, let me change the color of the pen. Suppose that this year is written. I mean, I'm giving you a question with 4 different years. 1857, 1947, 1900, and let's say none of these. My question to you is, which of the following is a leap year? I repeat my question. Which of the following is a leap year, guys? Anji. Yes, Prince. Dinesh is saying C. Okay. None? None? All of you? None? Most of you are saying C. Mayur is saying it is C. Alok is saying none. Akshay is saying it is C. Aisha is saying 1900. Nishu is saying, sir, for century year, it should be divisible by 4. Acha. Acha, theek hai. All right, guys. Now, let me tell you the answer. The answer is none of these. Okay, everyone? The answer is none of these. Correct? Okay. And everybody, just look at these 4 points about a leap year. Look at these 4 points about a leap year. If you want to write them, you can write, else it's okay. They are also given in your notes. Okay? Any doubt in these 4 points? Any confusion? अभी मैं आपको 4th पॉइंट एक बार इलैबोरेट कर देता हूं. All right. Done, everyone? Done?
Okay. See, all of you, 1900 I was talking about. See, in case of a century year, everyone, in case of a century year, ठीक है, in case of a century year, it has to be divisible by 400 to become a leap year. Right, everyone? What is century year? Hmm? What is century year? Multiple of 100. Right? A century year means a multiple of 100. Okay, everyone? ठीक है. All right. तो देखिए, if a year is a century year, तो अगर वो 400 से डिविजिबल है, then only it's a leap year, else not. Correct, everybody? Right? So 1900 is not a leap year, 1800 is not a leap year, 1700 is not a leap year, 1600, yes. It is a leap year because it is divisible by 400. Everybody okay? Right? So 1100 won't be a leap year, but 1200 will be a leap year. Everyone comfortable with this? All of you? Okay? Any doubt? Anyone? Why it happens? Yes. देखिए, एक्चुअली वही है लॉजिक कि जो 6 आवर्स होते हैं ना एक्स्ट्रा, 1 ईयर में 365 डेज से थोड़ा सा टाइम ज्यादा होता है कुछ आवर्स में, राइट? तो अजम्पशन ये है कि ये 6 आवर्स मतलब एक्चुअली 6 आवर्स समथिंग सेकंड्स समथिंग मिनट्स भी होते हैं उसमें। तो जो 6 आवर्स होते हैं, उस 6 आवर्स को 4 इयर्स में वो 24 आवर्स कंप्लीट कर देते हैं। तो एवरी 4 इयर्स वी हैव वन एक्स्ट्रा डे, so that's why leap year occurs in every 4 days, right? बट ये जो सम एक्स्ट्रा मिनट्स एंड एक्स्ट्रा डेज हैं, ये जो है ये 400 ईयर्स में जाकर के एक डे कंप्लीट करते हैं, 24 आवर्स, राइट? तो उन 400 ईयर्स में आप जाकर के एक एक्स्ट्रा डे ईयर में सेट करते हैं, करेक्ट? सो दैट आपका जो कैलेंडर है वो सिमेट्रिक बना रहे हैं। एवरीबडी ओके नाउ? राइट? क्लियर? अभी ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा, राइट? और ये बात सही है कि जैसे अभी इन्होंने पूछा कि जैसे 1896 है, 1896, 1892, this is a leap year, this is a leap year, but 1900 is not a leap year, right? रुक जाइए, क्रॉस टिक कर देता हूं। This is a leap year, this is a leap year, this is not a leap year, and this is again a leap year. So in this case, a leap year will be occurring after 8 years, right? In this case, a leap year will be occurring after 8 years. If अच्छा, इसको बोलते क्या हैं? इसको क्या बोलते हैं इन जनरल? इसको बोलते हैं नॉन लीप सेंचुरी, नॉन लीप century, right? A century which is not a leap year is known as non-leap century. Anybody, any doubt? Any problem? Century which is not a leap year is known as non-leap century. Guys, clear? ठीक है? Okay. All right. Dinesh Verma saying, I always remember this part. Now I got the logic. Okay. ठीक है. All right, Dinesh. Good. You got the logic. Yes. Everyone fine? ठीक है. अभी आगे बढ़ जाए हम लोग. Now it's your point is clear. Your doubt is clear. ऑर्डिनरी ईयर, यस, बिकॉज एक वीक आपका आपने 7 डेज में डिवाइड किया,
जब आप 365 डेज में वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है उसका, तो उसमें देखिए 777 के आप 52 ही स्लॉट्स निकाल पाओगे। तो one normal year will have 364, which is 52 weeks complete plus one extra day. So that extra day is known as off day. Clear now? ठीक है? Everybody fine? Sorry. ठीक है अभी? Okay. Now can we move? I mean, shall we move now? This part is clear. Anyone? Any confusion? Online students, offline students? Dipali is saying, sir, I'm not able to understand the 6 hours. दीपाली एक्चुअली एक जो ईयर होता है ना उसमें 365 डेज प्लस 6 आवर्स प्लस कुछ मिनट्स होते हैं, राइट? वो जो 6 आवर्स होते हैं वो 4 ईयर्स के बाद 6 6 6 6 24 आवर्स बनाते हैं, तो दैट्स वाई आफ्टर एवरी 4 आवर्स वी हैव वन डे, राइट? सो दैट्स वाई एक लीप ईयर आता है, राइट? आप समझ रहे हैं, हर 4 ईयर्स में एक लीप ईयर आता है जिसमें एक एक्स्ट्रा डे होता है, ओके? दैट्स वाई। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। आफ्टर दैट, अच्छा, किसी ने पूछा है कि सर विल देयर बी 30th फेब इन नॉन लीप सेंचुरी? देखिए, एक ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है वैसे कि फरवरी में 28 डेज क्यों होते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। इसका कोई ऐसा कोई वो नहीं है, लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ रैंडमनेस है। फरवरी में 28 डेज क्यों होते हैं, जस्ट कैलेंडर को सिमेट्रिक रखने के लिए एक मंथ ऐसा रखना पड़ा, क्योंकि अगर आप 30 डेज का मंथ काउंट करते हैं तो 364 में जब आप डिवाइड करोगे तो पूरा तो बनेगा नहीं, राइट? तो किसी एक मंथ को कम करना था, तो वो रैंडमली फरवरी को किया गया। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई उसके पीछे कोई कैलकुलेशन है या कोई लॉजिक है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? राइट? अगर आपको कभी मिले तो मुझे भी बता दीजिएगा। ऑलराइट, ठीक है। Okay, Nick Kumar Das is saying, sir, some centuries are considered as a leap year, for example, for 1600. Yes, एक्चुअली क्या होता है कि मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो 1 ईयर होता है, कंप्लीट ईयर, उस ईयर में 6 मतलब 365 डेज तो होते हैं, साथ-साथ 6 आवर्स एंड कुछ मिनट्स भी होते हैं, ठीक है? तो वो जो 6 आवर्स हैं, वो 6 आवर्स, 6 आवर्स, 6 आवर्स, 6 आवर्स, 4 ईयर्स में वो 24 आवर्स कंप्लीट करते हैं, तो 1 डे बन जाता है। और वो जो एक्स्ट्रा मिनट्स आते जा रहे हैं, वो मिनट्स आपके चलते-चलते कुछ 400 ईयर्स में 24 आवर्स कंप्लीट करते हैं, ठीक है? So that's why after every 400 years we take one extra day. All right? Okay. All right. ठीक है। गाइस आप लोग इसको कंटिन्यू करिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? यस। ऑल राइट, ठीक है। ओके। आफ्टर दैट, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितने भी, वो कभी आपसे कुछ लंबी कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे, बहुत ही रेयर होगा। ज्यादातर क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन योर अवेयरनेस, आपसे हाउ मच अवेयर यू आर, हाउ मच ऑब्जर्वेंट यू आर, आपसे। आई शो यू द क्वेश्चंस, डोंट वरी एवरीवन। इसको अभी छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे। जस्ट रीड दिस क्वेश्चन। This question came in some exam of UPSC. It's not CSAT, UPSC, CSAT में नहीं आया, but in some other exam of UPSC. So I have picked this question from UPSC itself, but some other exam. करिएगा नहीं please. Don't solve it. Don't solve it. You just tell me the answer without using pen, guys. पेन रख दीजिए, मैंने भी रख दिया। ओह, हाँ, 106. Everyone? Yes. The correct answer is 106. Very good. Friends, मुझे एक बात बताइए, what can be, the question is saying what can be the maximum Saturdays and Sundays in a leap year, right? मुझे एक बात बताइए, can be, oh, sorry, हाँ ठीक है, यही है,
कैन बी सिचुएशन को सेटिस्फाई कैसे करवाएंगे आप? कैन बी सिचुएशन को कैसे सेटिस्फाई करवाएंगे? यस एवरीवन, for being maximum Saturdays and Sundays in a leap year, the leap year has to be started with Saturday only. 1st January will be on Saturday. Guys, yes or no? Try to understand the question first. पहले ये समझिए कि यार ये होगा कैसे? मैक्सिमम सैटरडेज एंड संडे ऑकर कैसे करेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. आंसर से मुझे कोई मतलब नहीं है, आता रहेगा. आप क्वेश्चन को समझिए. व्हाट यूपीएससी वांट्स यू टू प्रोसेस इन दिस क्वेश्चन, वो उस प्रोसेस में जाइएगा. एवरीबॉडी ओके? राइट. So actually here the leap year will be started with Saturday. And the 1st January will be on Saturday. Then only maximum Saturdays and maximum Sundays will be occurring in that leap year. Correct? So if that leap year will be occurring on Saturday, will be starting on Saturday. So how many Saturdays will be there in that leap year? 53. And how many Sundays will be there? 53. So 53 plus 53, the maximum sum can be 106. Everyone fine now? 53 plus 53, the answer is 106. Online students, any confusion, any query, any doubt? Okay, that's great. Most of you are saying it is 106, 106, 106. Very good here. Very good. Yeah. Done, everyone? Any students, any confusion? No? Clear? अच्छा. अच्छा, मुझे एक बात बताइए. If the same question is being asked for normal year, if the same question is being asked for normal year, then what is the answer? Correct. If the same question is being asked for normal year, then the answer will be 105. Everybody? Correct? Good. Very good. बहुत अच्छा. Very good. If you want to write it, you may write it, else we can move. ठीक है? और अपने नोट्स को इस तरह से बनाइएगा कि आज से 6 मंथ्स के बाद जब आप अपनी कॉपी खोलेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि आपने ये ऐसा क्यों लिखा. ऐसा होता है ना कभी कभी कि यार ये मैंने क्यों लिखा था. हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो बहुत होता था कि मैं शॉर्टकट में कुछ भी लिख देता था, बाद में सोचता था क्या लिखा है. राइट? यस एवरीवन. So for normal year, the answer will be 105, and for a leap year, the answer will be 106. All right. Bipin is saying, sir, 52 or 53 days. Bipin, actually for normal year, देखिए, for normal year, the first day, suppose that 1st January पड़ा आपका संडे को, ठीक है, या सैटरडे को. मैं नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूं. So if 1st January will be on Saturday, then in that year 53 Saturdays will be there. And if I talk about Sunday, so Sunday will be 52. So for a normal year, the answer will be 105. But if a leap year starts with Saturday, then in that particular year, 53 Saturdays and 53 Sundays will also be there, because in a leap year, first 2 days of the year will be occurring 53 times. Okay, Vipin, it is clear? All right. Okay. Shall we move now, guys? Clear? Anyone, any other confusion, any other doubt? No? Okay. ठीक है, चलिए. ठीक है. देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रूव दैट. ठीक है, तो प्रूव दैट तो चलो प्रूव तो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं है.
मुझे आप ये बताइए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ये क्या है? जस्ट रीड दिस, क्या लिखा हुआ है? The calendar of 2003 will be same as the calendar of 2014. Everyone, yes or no? Right. The calendar of 2003 will be same as the calendar of 2014. अच्छा, किसी दो पर्टिकुलर ईयर्स के कैलेंडर सेम हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? किसी टू पर्टिकुलर ईयर्स के कैलेंडर सेम हैं, क्या मतलब है इस बात का? हम्म, किसी टू पर्टिकुलर ईयर्स के कैलेंडर सेम है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट गाइस? हाँ, मतलब सी हियर 2003 अगेन इट्स अ नॉर्मल ईयर, सो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर जैसा ही होगा, इट्स राइट। बट ठीक है, उनकी बात भी सही है कि वो कह रहे हैं कि अगर 2003 इसका 1 जनवरी सपोज दैट लेट्स से मंडे को आया, ठीक है, तो 2014 का भी 1 जनवरी मंडे को ही होना चाहिए। एवरीवन फाइन? यही बात हो रही है आप लोगों के बीच में? हम्म, यही कहना चाह रहा है ना ये क्वेश्चन। आपने फर्स्ट डे मैच कर दिया, दोनों ईयर्स का नेचर मैच हो गया, नॉर्मल नॉर्मल, फर्स्ट डे मैच कर गया, तो बाकी का तो पूरा कैलेंडर मैच हो ही जाएगा। यस और नो? So your only purpose is to prove that the 1st January, I mean, this year starts with, if this year starts with Monday, then this year also starts with Monday. Your only purpose is that in this particular question. Any doubt, guys? सबसे पहले ना जब क्वेश्चन देखा करें आप, तो थिंक अबाउट द पर्पस फर्स्ट कि यार इसमें ऐसा क्या करें कि जो पूछ रहा है वो इस्टेब्लिश हो जाए। गेटिंग इट एवरीवन? राइट? कि व्हाट इज टू बी डन टू एस्टैब्लिश द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। करेक्ट एवरीवन? ठीक है, ओके। नाउ मुझे एक बात बताइए, ये मंडे है और ये भी मंडे है, ठीक है। मंडे मैंने रैंडम लिया है, हो सकता है मंडे ना हो, वेंसडे हो सकता है फ्राइडे हो, सैटरडे हो, व्हाटएवर, लेकिन कुछ कोई एक पर्टिकुलर डे है, मंडे ही सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, लेट्स से इट इज मंडे। अब मुझे एक बात बताइए, ये एक मंडे है और ये एक मंडे है, इनके बीच में ऑब्वियसली देयर विल बी अ गैप ऑफ सम डेज, ऑब्वियसली वो तो होगा ही, ठीक है। उन डेज में एक्चुअली वो डेज कैसे होंगे? वेरी गुड। देखिए गाइस, एक मंडे से दूसरे मंडे के बीच में जो गैप होगा वो मल्टीपल ऑफ 7 का होगा, क्योंकि कंप्लीट वीक्स के बाद ही मंडे वापस से आ सकता है, राइट? दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस क्लास, राइट एवरीवन? So between two Mondays, the gap will be a multiple of 7 number of days. Correct, guys? ठीक है, right? So what here we have to prove, we just have to prove that between these 2 years, the gap is of the multiple of 7 का days, right? अच्छा, एक बात और समझिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। When you move from one year to another year, what you do? You actually add 365 days. अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डेट में हैं, अगर आपने उसमें 365 डेज ऐड कर दिया तो आप नेक्स्ट ईयर में उसी डेट पे पहुंच जाएंगे, यही होगा ना यार। अब अगर आपने 365 डेज ऐड कर दिए तो आपने क्या ऐड किया? आपने ऐड किया 52 वीक्स प्लस 1, यही है ना यार। तो इफ यू आर टेकिंग अ गैप ऑफ 365 days, which means 52 complete weeks plus 1 extra day, हो क्या रहा है? अगर एक ईयर में पूरे पूरे 52 वीक्स ही होते तो कैलेंडर कभी डिस्टर्ब होता ही नहीं।
आप समझिए बात को। अगर एक ईयर में पूरे 364 डेज होते, जैसे 364 का मतलब वो 52 वीक्स कंप्लीट होते, तो कैलेंडर कभी डिस्टर्ब नहीं हो, राइट? आपको याद हो गया होता कि आपका बर्थडे संडे को आता है, भाई एवरी ईयर वो संडे को ही हो रहा होता, चेंज होने का कोई मतलब उसमें क्वेश्चन ही नहीं है। आपको याद होता कि दिवाली जो है थर्सडे को होती है, कि जो होली है वो मंडे को होती है, आपको याद होता बिल्कुल, आप अपनी छुट्टियां प्लान करवाते उस तरीके से। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? कि 15 अगस्त इस डेट को पड़ेगा, बट कैलेंडर डिस्टर्ब क्यों होता है? कैलेंडर डिस्टर्ब होता है ऑड डेज की वजह से। ड्यू टू ऑड डेज इन द ईयर द कैलेंडर गेट्स डिस्टर्ब। गाइस इट इज फाइन, ठीक है? यस, यस, ऑड डेज की वजह से कैलेंडर डिस्टर्ब होता है। तो अब पता है प्रॉब्लम क्या है, इस चीज को समझिएगा जरा एवरीवन। आई जस्ट वांट टू रिपीट, आई जस्ट वांट टू क्लीन इट, ठीक है? मुझे एक बात बताइए, मैं 2003 लिख रहा हूं यहाँ पे, ऑब्वियसली ये फर्स्ट डे के लिए लिखा हुआ है, ठीक है? 2003, 2004, 2005, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखिए, मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे एक्चुअली प्रूफ करना है कि यहां से यहां तक का जो गैप है, दिस गैप इज ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 डेज। Everybody, yes? So what we actually have to prove in this question, to prove the calendar is same, we actually have to prove the gap from this year to this year is of multiple of 7 number of days. Guys, okay? So this is the actual question behind this question. Got it, everyone? Right? Okay. After that, friends, मुझे एक बात बताइए, ये प्रूफ करने के लिए मैं यहां पे 365 पूरा ऐड करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज 364 तो हमेशा 7 का मल्टीपल है ही। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो क्या है? वो है ऑड डे। हियर इट इज 1 ऑड डे, हियर दीज आर 2 ऑड डेज, क्योंकि आप देखो बात को समझो, दिस इज 52 वीक्स प्लस 1, 52 वीक्स प्लस 2, 52 वीक्स प्लस 3। तो पता है ये जो 52 वीक्स है ना, दीज आर ऑलरेडी अ मल्टीपल ऑफ 7। ये यहां से यहां तक पूरा 7 का मल्टीपल तो होते चले ही जाएंगे ना। जो आप इनको ऐड करोगे, सी दिस इज द मल्टीपल ऑफ 7, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 7, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 7। so when you are adding them, then the resultant will obviously be the multiple of 7, since individual term is the multiple of 7, right? So resultant will obviously be the multiple of 7. so the thing is कि जो आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो ना, ये वाला, this has to be, I mean अगर ये 7 का मल्टीपल बन जाता है, तो ये पूरा का पूरा जो सम आप लिखोगे, दिस सम विल बिकम द मल्टीपल ऑफ 7. so the only purpose here is कि जब ये ऑड डेज ऐड होते 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 7 का मल्टीपल देते हैं आप। गाइस, इज इट क्लियर? राइट? तो ओनली पर्पस हियर इज कि भाई जब ये ऑड डेज ऐड होते 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 आपको 7 का मल्टीपल दे दे। करेक्ट? नाउ फ्रेंड्स, मैं ये जो इंटरमीडिएट स्टेप इसको हटा रहा हूं यहां से, ठीक है? इसकी जरूरत नहीं है। देखिए, 2003 will have 1 odd day. 2004, since it is a leap year, it has 2 odd days. 2005, since it is non-leap year, it is a 1 odd day. Again, it is 1 odd day. It is 1 odd day. Guys, रुकिए जरा, इधर देखिए, everyone इधर देखिए प्लीज। 1, 1, 1, 3 plus 2, 5, 5 plus 1, 6। अब नेक्स्ट ईयर का वेट कीजिए। 6 हो चुका है, हमको 7 चाहिए। 2008 हो गया लीप ईयर, तो लीप ईयर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 2 ऑड डेज, राइट? So guys, unfortunately, after 6, what we are getting? We are getting 8. After 6, we are getting 8. Now what we should do? We should wait for 14, the next multiple of 7. Correct, everyone? We should wait for 14, the next multiple of 7. ठीक है? अच्छा, चलिए। .
देखिए यहां तक 8 हो गया था, 9 10 11 13 and this is 14. Yes, correct. So guys, from here to here the odd days are becoming 15 odd days. ठीक है, means 2 complete weeks. और 52 वीक्स 52 वीक्स 52 वीक्स तो आपके पास पड़े ही हुए हैं। अब यहां से लेकर के यहां तक, सॉरी इधर अंडू नहीं है क्या, ठीक है, अब यहां से लेकर के यहां तक what we have a gap of clear gap of a multiple of 7 days, correct guys? तो अगर ये I mean if this 1st January is on Monday, suppose that, then this 1st January will be also on Monday. So 2003 will have the same calendar as 2014. Everybody okay with this? आप पहले इतना नोट करिए because I want to teach something more in this concept. ठीक है, तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर we'll discuss some other things. Sumit Lakhota is asking, sir, why don't we make a calendar of 52 weeks? हाँ, ये बात सही है, 5 days का वीक करते हैं, हाँ। सारे डेज वर्किंग हो जाएंगे फिर। 3-4 संडे भी ले आए वीक में तो भी बहुत छुट्टियां हो जाएंगी, मतलब फिर तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अच्छा, एवरीवन इट इज फाइन नाउ? नो फ्रेंड्स, what interesting point I want to discuss from here is, मुझे ये बताइए कि 2003 will have the same calendar as 2014. Everybody clear? ठीक है, 2003 will have the same calendar as 2014. 2003 will have the same calendar as 2014. ठीक है, मुझे ये बताइए what is the gap between 2003 and 2014 everyone? 11 years. ठीक है, good. Hey friends, here, though it is the gap of 11 years, but you cannot generalize कि the calendar will repeat after every 11 years. आप ये नहीं बोल सकते, और ऐसा होता भी नहीं है, राइट? ओके, होता क्या है इसको समझिए। मैं आपसे इसी टेबल में पूछता हूं, और यही लिखा हुआ है, मुझे ये बताइए कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? आप बताइए, यहीं पे देख के बताइए। The calendar of 2005 will get repeated in which year? इलेवन। 10 तक आपके 7 लीप ईयर, 7 ऑड डेज हो रहे हैं। देखिए, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ठीक है, 2005 ये लिखा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 5 6 7। So from this 2005 to 2010 we have 7 odd days, so then 2011 will have the same calendar as 2005. So everybody, the calendar of 2005 will be repeating in 2011. Acha, what is the gap here? 6 years. The calendar of 2005 will be repeating after 6 years, not 5 years, will be repeating after. ठीक है everyone, right? Clear? मुझे एक बात और बताइए, 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? बताइए, आप ही बताइए। You please tell when we'll have, I mean, when the calendar of 2009 will be repeated. इसमें देख के करो ना guys, the answer is 2015. देखिए, 1 1 1 plus 2 3, I mean 5 5 plus 1 6, अब ये एक और हो जाएगा 7, then 2015 will have the same calendar as 2009.
So everyone, 2009 will have the same calendar as 2015. अच्छा, एक बात है बहुत इंटरेस्टिंग सी जिसको आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए यहाँ पे. वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट यू गाइस नीड टू ऑब्जर्व हियर. इसको देखिए जरा, पैटर्न को देखिए. 1 1 1 2 1 1. करेक्ट एवरीवन? इट इज 1 1 1 2 1 1. करेक्ट. यहां देखिए, अभी आपने 2009 की बात की थी. 1 1 1 2 1 1. गेटिंग इट एवरीवन? अगर कैलेंडर 6 इयर्स में रिपीट हो रहा है, ये जो लिखा हुआ है 6 इयर्स, तो पैटर्न यही बनना चाहिए, क्योंकि आप इसी तरीके से जब जोड़ना शुरू करेंगे तभी आपको 7 मिलेगा. आई मीन उसमें एक 2 होना चाहिए, बाकी सारे 1 होने चाहिए. आर यू गेटिंग इट एवरीवन? राइट. अच्छा, ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2011 का कैलेंडर कौन से ईयर में जाके रिपीट होगा? 2011 का कैलेंडर कौन से ईयर में जाके रिपीट होगा? चेक कर लीजिए आप. द आंसर विल बी 2022 एंड the pattern will be this only: 1 2 1 1 1 2 1 1 2. सेम पैटर्न. चेक कर लीजिए आप. पहले आप चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद इस कैलेंडर को मैच कीजिए, पैटर्न को मैच कीजिए. 2011 का कैलेंडर कौन से ईयर में जाके रिपीट हो रहा है और उसका पैटर्न क्या बन रहा है? Got it everyone? यही आ रहा है? ओके. ओके, दैट्स ग्रेट. देखिए फ्रेंड्स, क्या हो रहा था कि मैं आपसे ये बोल रहा था, इधर देखिए. व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज कि दिस कैलेंडर इज गेटिंग रिपीटेड आफ्टर 11 years. Here the calendar is getting repeated after 6 years. So friends, you know what? We cannot generalize anything. आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि कैलेंडर हर बार 11 साल के बाद रिपीट होगा या कैलेंडर हर बार 6 साल के बाद रिपीट होगा. नो, यू कैन नॉट जनरलाइज दिस फैक्ट. बट with respect to the positioning of a leap year, we can have the same pattern, जैसे कि हमें यहां पे दिख रहा है. राइट. आपको पता है 2003 का नेचर क्या है विद रिस्पेक्ट टू लीप ईयर? दिस इज अ प्रीडिसेसर ऑफ अ लीप ईयर गाइस. 2004 एक लीप ईयर है, उसके जो पहले वाला साल है, पहले वाले साल को प्रीडिसेसर कहेंगे ना. तो 2003 will be the predecessor of a leap year. So a predecessor of a leap year will have the same calendar after 11 years. ये आप बोल सकते हैं. The successor year of a leap year will have the same calendar after 6 years. ये भी आप बोल सकते हैं. राइट. देखिए, मैं आपको बताता हूं सिचुएशन क्या होती है. एवरीवन, 2004 इज अ लीप ईयर. ठीक है. 2005, this is a successor of a leap year. This will repeat after 6 years. 2006, 2007, 2008. This is the successor of a leap year. It will be repeated after 6 years. This will be the predecessor of a leap year. It will be repeated after 11 years. And this year is known as the alternate year of a leap year. This will be after repeated. I mean, this will be also repeated after 11 years. ठीक है. आप एक काम करें, आप इसको लिखिए. लिखिए द सक्सेसर comma predecessor comma alternate year. I repeat, the successor
comma predecessor, comma alternate year of a leap year. I repeat, the successor, the predecessor, and the alternate year of a leap year will have the same calendar after 6 years, comma 11 years, and 11 years respectively. The successor, the predecessor, and the alternate year of a leap year will have the same calendar after 6 years, comma 11 years, and 11 years respectively, provided अब रुक जाइए, प्रोवाइडेड के बाद आप रुक जाइए. यू प्लीज टेल मी व्हाट वी शुड राइट हियर. ठीक है, मुझे ये बताइए एवरीवन, ये जो आपका पैटर्न बन रहा है 1 1 1 2 1 1, ठीक है, 2005 या कहीं पे भी 1 1 1 2 1 1, लीप ईयर का कोई भी ईयर सक्सेसर ईयर अगर मैं यहां पे लिख देता हूं एवरीवन, इफ आई राइट एनी सक्सेसर ईयर ऑफ अ लीप ईयर, आई विल बी गेटिंग दिस पैटर्न ऑफ ऑड डेज, राइट. मुझे ये बताइए, क्या ये पैटर्न कहीं पे ब्रेक होगा? गाइज, ये पैटर्न वहां ब्रेक हो जाएगा अगर कोई ऐसा सेंचुरी ईयर आ जाए जो नॉन लीप सेंचुरी हो. एवरीबॉडी यस और नो? देखिए, आई शो यू, आई शो यू. ये पैटर्न कहां पे ब्रेक होगा? मैं इसको हटा दूं, यहां पे लिख दूं. देखिए, ठीक है, देखिए एवरीवन, 1896, दिस इज व्हाट, दिस इज अ लीप ईयर, है ना, राइट. तो 1897 विल बी द सक्सेसर ईयर ऑफ दिस. ठीक है, 1897, मैं कह रहा हूं कि 1897 का कैलेंडर कब रिपीट होगा. तो 97 मैंने लिखा, 98, 99, देन 1900, and then 1901, then 1902, then 1903, 1904 एंड सो ऑन. अभी देख लेते हैं, ठीक है. फ्रेंड्स, दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज वन. अब ये सेंचुरी ईयर है, आइडियली जो है 4 इयर्स के बाद लीप ईयर आ जाना चाहिए, बट दिस इज नॉट अ लीप ईयर, राइट. So this is again giving you one odd day, and this is one, and this is one, and this is one. So friends, here to here it becomes 7. Now the problem is 1897 should have the same calendar as 1904. But the problem is 1904 is a leap year. 1897 is a non-leap year. Is a successor of a leap year, right? अब ये ऐसा तो हो नहीं सकता. तो आपका ये जो पैटर्न है ना 1 1 1 2 1 1, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है तो. अब आप उसमें लिखिए, प्रोवाइडेड नॉन लीप सेंचुरी शुड नॉट कम इन बिटवीन. प्रोवाइडेड नॉन लीप सेंचुरी शुड नॉट कम इन बिटवीन. Provided non-leap century should not come in between. Guys, hope it is clear. Everyone, this part is clear. Provided non-leap century should not come in between. Guys, clear now? ठीक है. अब देखिए, वेरी गुड, ठीक है. ऑल्टरनेट ईयर, ऑल्टरनेट ईयर को आप एक बार करके देख लो. जैसे 2000 आपने 7 प्रूफ किया है ना कि 2000, एक बार कर लीजिए. चलिए, मुझे ये बताइए 2006 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? चेक कर लीजिए आप लोग. एवरीवन प्लीज चेक 2006 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा. ठीक है, ठीक है. ऑल्टरनेट ईयर का नहीं हुआ है क्लास में डिस्कस, कर लेते हैं. एवरीवन जरा चेक करिए कि 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा जाकर के. प्लीज टेक इट आउट. करिए जरा कॉपी पे, करिए करिए प्लीज करिए, जल्दी से करिए. 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, चेक करिए.
Are you getting the answer as 17? Avinash is getting the answer as 2017. हाँ 17 आ गया. Okay. Okay, that's good. चेक कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए. आई डिस्कस फॉर यू, डोंट वरी. अगर आपका नहीं हो रहा तो आई सॉल्व फॉर यू, डोंट वरी. हो गया? कुछ और आ गया? 2012 आ गया? 2012 तो लीप ईयर है यार, कैसे हो सकता है? 2012 तो लीप ईयर है ना गाइस. देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका बाय चांस 2012 आ भी गया है तो आप ये समझ जाइए कि लीप ईयर कांट हैव द सेम कैलेंडर एज एन ऑर्डिनरी ईयर. जैसे यहां पे मेरा 1904 आंसर आ गया था, राइट? बट आई कांट एक्सेप्ट दिस आंसर. उसका रीजन है, अ लीप ईयर वोंट हैव द सेम कैलेंडर एज एन ऑर्डिनरी ईयर. बिकॉज जैसे ही लीप ईयर में 29 फरवरी आएगा, पूरा कैलेंडर डिस्टर्ब हो जाएगा. समझ रहे हैं? फ्रॉम 1 जनवरी टू 28 फरवरी एवरीथिंग विल बी सेम. आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी डिफरेंट. राइट एवरीबडी? यस. So the answer is 2017. Dinesh, hope it is clear now. Okay, Sadhana, Anjali, Akshay, good. That's good. Okay, Dinesh, good. Okay. Anyone who is not getting the answer, just let me know. I'll solve it for you. Don't worry. अनिश आपका हो गया. All of you हो गया ना सभी का? कर दूं? ठीक है. तो बोल दिया करो ना. देखिए, मैं इसको हटाऊं, यहीं पे कर दूं. ठीक है. देखिए, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. ठीक है. This is 1, this is 1, this is 2, this is 1, this is 1, right? This is 1 and this is 2. ठीक है. पहले तो आप चेक कर लो. 1, 1, 2, this is 4, 5, 6, 7. अच्छा, इसलिए आप 12 बोल रहे थे. ठीक है, वो क्लियर है. उसके बाद देखिए, ये हो गया 9, 10, 11, 12. मैं काउंटिंग में गलती तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं. 12 प्लस 2, 14. ठीक है. So this is 2017. So from here to here we have 14 odd days. अभी ठीक है? What's your name? Sumit. Sumit, अभी क्लियर हो गया? All of you, fine now? Everybody? So friends, what we can generalize it, a successor of a leap year will have the same calendar after 6 years. The alternate year will have the same calendar after 11 years. And the predecessor of a leap year will have the same calendar after 11 years, provided non-leap century should not come in between. Correct friends? ठीक है. अब मैं आपको बताता हूं कि आई शो यू द यूपीएससी का क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज. और आप देखिएगा कि वो ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जस्ट बाय लुकिंग एट देम यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है. देयर इज नो नीड फॉर एनी कैलकुलेशन, नथिंग. कुछ करने की जरूरत नहीं. बस आपको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. That's it. ठीक है. आई शो यू द क्वेश्चंस. आर वी रेडी फॉर दैट? चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन गाइस. Alok Kumar is saying, sir, why can't we take 2012? Alok, 2012 is a leap year ना. लीप ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के जैसा नहीं हो सकता. ये 2006 इज अ नॉर्मल ईयर आलोक. इन 2012 इज अ लीप ईयर. देखिए, यही ऑब्जर्वेंट होना है आपको. ठीक है. एग्जाम में हो सकता है 2012 ऑप्शन में लिखा हो, लेकिन 2012 इज द ऑप्शन जो कि सबसे पहले एलिमिनेट किया जाएगा, क्योंकि 2006 एक नॉर्मल ईयर. राइट? प्लीज माइंड इट. और हो सकता है बहुत सारे लोग 2012 को सेलेक्ट कर ले. ठीक है, ध्यान रखिए इन बातों का. अच्छा,
आंचल, आपके एडिशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक बार फिर से ऐड कीजिए। ठीक है, 2011 तक 7 आ गया, दैट इज करेक्ट। तो इसका मतलब 2012 सेम होना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि 2012 एक लीप ईयर है, राइट? मैं यही तो बोल रहा हूं उतनी देर से। ओके, अच्छा चलिए, या ठीक है, क्लियर है, दैट्स गुड। ठीक है, नाउ गाइस लेट्स डिस्कस द यूपीएससी क्वेश्चन, बिकॉज यूपीएससी क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं नहीं चाहता कि आपको कोई डाउट रह जाए। ठीक है, ओके, ओके। व्हाट्स द ऑल्टरनेट ईयर? ऑल्टरनेट ईयर का मतलब ये होता है जो कि लीप ईयर के साथ एक ईयर के गैप पे हो। देखिए, लीप ईयर 2008 है, तो लीप ईयर के साथ एक साल का गैप हुआ 2006। ऐसे ही 2004 भी लीप ईयर है, उसके साथ 1 ईयर के गैप पे 2006। ऑल्टरनेट समझ गए ना अभी? ओके, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ओके। कैन वी मूव नाउ गाइस? हाँ, ऑलराइट, चलिए। एवरीवन, दिस इज सीसैट 2019 का क्वेश्चन। जस्ट टेल मी द आंसर क्विक, क्विक। एवरीवन, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? क्विक। ठीक है, everybody, right? The answer is 2015, because this is what? This is the successor of a leap year. Successor means plus 6. 2009 plus 6 is 2015. D option is the correct choice. Everybody okay? Right? Online students, comfortable? The answer is 2015. Anjali, 2016 नहीं होगा, please. 2015 होगा. Yes. Okay, guys. Correct, everyone? So this was one question. Now look at another question. 2009, 2019 में ये पूछा गया, इसको भी छोड़ दीजिए। 2024, बताइए क्या है आंसर? क्विक। यस, प्लस 6, 31 इज द आंसर, राइट एवरीवन? ठीक है, ओके, दैट्स गुड। द आंसर इज सी ऑप्शन, 2031 प्लस 6, करेक्ट। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और आप देखिए यूपीएससी ने कितना स्मार्टली एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, आपको ये भी पता चलेगा। ठीक है, मुझे एक बात बताइएगा, इस 2021 was the कोविड ईयर, ठीक है? आपको याद है 2021 में यूपीएससी का प्रीलिम्स कौन सी डेट को कंडक्ट किया गया था? एनी वन ऑफ यू? आपके भैया लोग अटेम्प्ट दे रहे होंगे। 2021 में यूपीएससी का प्रीलिम्स कौन सी डेट को कंडक्ट किया गया था? ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी आंसर? अतुल सिंह सर, अक्टूबर में हुआ था। यस अतुल, वेरी करेक्ट, अक्टूबर में हुआ था, बिल्कुल सही है। डेट और बता दीजिए और मजा आ जाए मुझे। हाँ, 10th अक्टूबर, वेरी गुड। 2021 में जो प्रीलिम्स हुआ था वो 10th अक्टूबर 2021 को, ठीक है, राइट एवरीवन? ठीक है, 2021 के बारे में आप क्या कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ लीप ईयर? व्हाट इज दिस? यस, दिस इज द सक्सेसर ऑफ अ लीप ईयर गाइस। यस और नो? कितने दिन में कैलेंडर रिपीट होगा? 6 years, right? Now look at the question of UPSC, what they have asked in 2021. अरे यार, ये क्या हो रहा है? ये आगे क्यों नहीं जा? कैसे आगे जाएगा? ऐसे नहीं। हाँ ठीक है, एवरीवन, ये हम कर चुके हैं। 2021 का यूपीएससी का क्वेश्चन देखिए। व्हाट्स द आंसर? एवरीबॉडी क्लियर?
अब देखिए, अगर आप ऑब्जर्वेंट नहीं, तो फिर आप कहेंगे यार अब 10 अक्टूबर 2027 को निकालने के लिए तो फिर मुझे पूरी कैलकुलेशन स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। उसका भी एक प्रोसेस होता है, एक फॉर्मूला होता है उसका भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। बट ये उस पे बेस्ड नहीं है गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अवेयरनेस का क्वेश्चन है कि अगर आपको पता है कि 2021 विल हैव द सेम कैलेंडर इन 2027, ठीक है, अब वो चाहे 10th अक्टूबर हो या चाहे वो 15th अगस्त हो या 9th नवंबर हो या 20th अक्टूबर हो, वॉट एवर कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पूरा का पूरा कैलेंडर ही सेम है, तो किसी भी पर्टिकुलर डेट की आप बात कर लीजिए। तो 10th अक्टूबर 2021 प्रीलिम्स का डेट था, सो इट वाज संडे ऑब्वियसली, ठीक है। तो 10th अक्टूबर 2027 विल आल्सो बी ऑन संडे। लुक एट द क्वेश्चन, लुक एट द स्मार्टनेस ऑफ द क्वेश्चन, राइट। अब कहने वाले कुछ भी कहें कि यार यूपीएससी ने इतना टफ क्वेश्चन पूछ दिया, कुछ नहीं है गाइस, कुछ टफनेस नहीं। आपके अंदर दिमाग तो हो उसको समझने के लिए, राइट। और वो कहां से आएगा? वो जब आप अपनी डे टू डे लाइफ में इस टाइप से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तब आएगा वो, राइट। ओके एवरीवन, एंड इवन 2021 का जो सीसैट था वो बहुत टफ सीसैट्स में काउंट किया जाता है, वो इजी सीसैट नहीं था गाइस। अगर आपने मतलब 21 में अगर आपने पेपर देखा हो तो एक बार जरा देखिएगा, अभी भी जाके आप अगर 21 का पेपर देखोगे तो यू विल फाइंड इट टफ, ठीक है। ऑलराइट एवरीवन, शैल वी मूव नाउ, आगे बढ़े हम लोग। ये क्लियर हो गया आपको? अब आप मुझे एक बात बताइए, सिर्फ एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे, कि सक्सेसर ऑफ अ लीप ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर आफ्टर 6 years, कितने क्वेश्चन अभी तक आपने कर डाले? 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में पूछा गया, 2024 में फिर से पूछा गया, राइट। आई शो यू फर्स्ट क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इन 2019, देन 2021, देन 2024, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि जो आपसे लोग कहते हैं ना पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, कहते हैं ना कि पीवाईक्यू करो, यूपीएससी कैन रिपीट इट्स थीम। तो पीवाईक्यू को आप इस तरह से पढ़िए, आप समझ रहे हैं? पीवाईक्यू पढ़िए, बट उसको पढ़ना कैसे है वो भी समझिए। इसको आप एक अपने शॉर्ट नोट्स में लीजिए कि भाई सक्सेसर ऑफ ए लीप ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर आफ्टर 6 years, करस्पॉन्डिंग पीवाईक्यूज 2019 जो भी है, ठीक है, 2019, 2024। यार ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ये पीछे जा रहा है। तो कोई बात नहीं, देख लेंगे उसको, नाराज हो गया है मेरे से। तो 2019, 2021 एंड 2024, समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, ओके। तेजस्विनी सिंह सर, व्हाट इफ वी डोंट नो द डे ऑफ प्रीलिम्स? ओके, ऑलराइट। अखिला सिंह सर, आई लर्न दिस कॉन्सेप्ट बट स्टिल आई फेल्ड। देखिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं होगा, आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी अखिला, राइट। you're you have to be prepared for these types of tricky situations in those 2 hours, ठीक है। एनीवेज, शैल वी मूव नाउ गाइस? ठीक है, हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिए, एक ये सवाल पढ़िए, ठीक। और ये एक सवाल जो है ना, ये इतना अच्छा सवाल है कि जिस बंदे ने क्वेश्चन फ्रेम किया है ना, मैं उसको सैल्यूट करता रहता हूं हमेशा। आप मुझे बताइए कि इस सवाल का मतलब क्या है। मैं हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा हूं आपसे, राइट। हिंदी मेरे को भी आती है, आई एम कंफर्टेबल विद बोथ द लैंग्वेजेस वेरी मच, राइट। मुझे ये बताइए कि इस सवाल का मतलब क्या है, क्या करना है आपको इस सवाल? हाँ जी, थोड़ा तेज बोलिए ना। आपका नाम क्या है? अंजलि। अंजलि, 13 फेब और 13 मार्च के बीच में कितने दिन होंगे, ये सवाल है, हैं? ये सवाल है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको?
मिनिमम नंबर पूछा और फरवरी में कम होते हैं इसलिए। ओके, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक agree with your friend Anjali? One. Okay. Anyone else? आपको क्या लग रहा है? कि तुम क्या कहना क्या चाह रहे हो? मेरे को सवाल बता दो ना, सवाल क्या पूछ रहा है यार, इतना कहानी बनाने की क्या जरूरत है? आई एम आस्किंग व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क। हाँ, जल्दी। 2 इयर्स? 2 इयर्स की बात कहाँ हो रही है? मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन व्हाट? हाँ, तो इट इज टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट ईयर्स। यस। व्हाट्स योर नेम एट द बैक? हाँ, यू आर्यन। आर्यन, व्हाट्स योर कॉम्प्रिहेंशन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? That is very obvious. It is asking the same. See everyone, let me tell you what. Sir, I am unable to understand the question. ठीक है, कोई बात नहीं. It's okay. Sir, what about century years? बताते हैं उसको. देखिए guys, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि मैं आपको क्या बताऊं. लेकिन आप लोगों को ये सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है. मे बी जैन, मे बी फैब. देखिए, रुक जाइए, मैं करता हूं. सी एवरीवन, सबसे पहले एक बात समझिए. इस क्वेश्चन को पढ़ते ही जो फर्स्ट थॉट क्लिक होना चाहिए आपको, वो पता है क्या है? आप अभी तक क्या कर रहे थे? लास्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आपने क्या किया है, ये बताइए. यस. In your earlier questions, you have proved that the calendar of this particular year is getting repeated in this particular year, right? In this question, everyone, मुझे एक बात बताइए. Is there any significance of this date 13th Feb? Sorry, 13th Feb, तो सॉरी मैंने गलती से बोल दिया. 13th जो लिखा हुआ है उसका कोई सिग्निफिकेंस है यहाँ पर? अगर मान लीजिए इस सवाल में लिखा होता 10th, 13th का सिग्निफिकेंस है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए आप इसको सोच लीजिए कि 13th की जगह कुछ और लिखा हुआ है. मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15th, राइट? तो क्या आपके सोल्यूशन का प्रोसेस चेंज हो जाता? यस और नो? नो. अच्छा, ठीक है. अगर यहां पे 10th लिखा होता तो क्या आपके सोल्यूशन का प्रोसेस चेंज हो जाता? अगर 10th लिखा होता तो सोल्यूशन का प्रोसेस चेंज होता क्या? यस और नो? बोलिए. क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? रुक जाइए, छोड़ दीजिए, मेरी बात सुनिए. गाइस, कुछ नहीं चेंज होता. 13th का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. 13th का क्या सिग्निफिकेंस है ये समझिए. 13th का सिग्निफिकेंस ये है कि ये 13 तारीख भी हो सकती थी, ये 1 तारीख भी हो सकती थी, ये 2 भी हो सकती थी, ये 3 भी हो सकती थी, ये 25 भी हो सकती थी. आप समझ पा रहे हैं? तो किसी एक महीने की 1 तारीख से 25 तारीख तक और किसी दूसरे महीने की 1 तारीख से 25 तारीख तक सब कुछ सेम होना चाहिए, तभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस आएगा. आप समझ पा रहे हैं? मतलब ये है कि इन अर्लियर क्वेश्चंस व्हाट वी हैव प्रूव्ड, द कैलेंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर इज सेम एज द कैलेंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर. Here we have to prove the calendar of this particular month is same as this particular month inside a leap year. तो अभी तक जो काम आप ईयर में कर रहे थे वो सेम काम आपको अभी मंथ में करना है, एक पर्टिकुलर लीप ईयर के अंदर में. ये बात आपको समझ में आई या नहीं है, पहले ये बताइए. ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट गाइस. सॉल्व हो जाएगा, होता रहेगा, नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन आपको समझ में तो आए पहले. बिना समझे सॉल्व करोगे तो इट हैज टू बी रॉन्ग यार. यही होगा कि 13 फरवरी और 13 मार्च के बीच में काउंट कर लीजिए. राइट? एवरीबॉडी यस और नो? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? करेक्ट एवरीवन? ठीक. अच्छा,
अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपको करना है या छोड़ना है, इसका सबसे पहला जो पैरामीटर है वो यही है कि आप क्वेश्चन के साथ कितने फैमिलियर है, नंबर वन। नंबर टू, आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाए कि नहीं कर पाए। कॉम्प्रिहेंड अभी आपने किया कि यार इसमें हमें करना ये था कि दो पर्टिकुलर मंथ्स का कैलेंडर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए इनसाइड अ लीप ईयर। दिस इज द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द क्वेश्चन, राइट? नाउ आफ्टर दैट, जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि अब ये बताइए ये होगा कैसे। यस, कैसे हो? हाँ, अरे स्टार्ट कैसे करोगे? मैं कह रहा हूं आप जैन से ही क्यों स्टार्ट करेंगे? मार्च से क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे? कहां से स्टार्ट करेंगे? देखिए, आपने सोचा कि स्टार्ट कैसे करेंगे, तो इसका मतलब आपने जो आप कह रहे हैं कि यू विल डू हिट एंड ट्रायल। एक्चुअली यू विल स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर मंथ एंड गो आफ्टर इट, यही है ना? यही कह रहे हैं ना आप लोग? यू विल टेक अ पर्टिकुलर मंथ एंड देन एक्चुअली आप हिट एंड ट्रायल करने की बात कर रहे हैं। हिट एंड ट्रायल में आप जनवरी से ही क्यों स्टार्ट करेंगे? कोई रीजन है उसका? यस, वेरी गुड गाइस। मार्च से आप इसलिए स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपने मार्च से स्टार्ट किया, मार्च अप्रैल मई जून जो भी है, तो किसी नॉर्मल ईयर में मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, या लीप ईयर में मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, उसके उसके नंबर ऑफ डेज में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो दिस क्वेश्चन हैज गिवन यू अ क्लू कि either you should start with January or you should start with February, because you have to consider February in your range. Because the question is saying, assume that the year is a leap year. You have to consider February in your range. The question is trying to help you out कि भैया फंसे मत रहना कि मार्च अप्रैल मई जून आप सब करते चले जाओ। नहीं, आइदर ये क्वेश्चन जनवरी में सॉल्व हो जाएगा और ये क्वेश्चन फरवरी में सॉल्व हो जाएगा, बस। क्लियर एवरीवन? क्लियर गाइस? एनी डाउट? ओके, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ अब मैं एक काम करता हूं, मुझे इस डेट से कोई मतलब नहीं। मैं इसको रैंडमली जो है, इन सब चीजों से इसमें आप भी मत फंसिएगा कभी, ठीक है? इसको सीधे मानिए फर्स्ट, ठीक? या ये क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी का कैलेंडर कौन से मंथ के जैसा होगा या फरवरी का कैलेंडर कौन से मंथ के जैसा होगा, बस। ये क्वेश्चन एक्चुअली यही कह रहा है। और फरवरी का कैलेंडर किसी मंथ में रिपीट नहीं करेगा, ये तो समझ लीजिए। तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन कह रहा है कि लीप ईयर में जनवरी का कैलेंडर कहां पे जाके रिपीट होगा, बस। द क्वेश्चन इज क्लियर। इन अ लीप ईयर द कैलेंडर ऑफ जनवरी विल बी रिपीटेड इन विच मंथ? गाइस, इट इज क्लियर? ठीक, क्लियर है? अब देखिए जरा, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? ठीक है, मुझे ये बताइए, कंडीशन नंबर वन, जनवरी, फरवरी, मार्च। फ्रेंड्स, इसको देखते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है? जनवरी में कितने ऑड डेज होंगे आप बताइए? 3, because 31 divided by 7 will give you the remainder as 3, right? Everybody, those who came late, आपको पता है ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? नहीं पता है? देखिए, ऑड डेज कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ डेज जो भी है उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए एंड रिमाइंडर विल बी कंसिडर्ड एज ऑड डेज, ठीक है? ठीक है अभी, राइट? 31 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर आएगा, ठीक है? कंप्लीट वीक्स के बाद क्या बचेगा? 3 बचेगा यहाँ पे, राइट? एवरीवन फाइन नाउ? अच्छा, मैं बोलना ये चाहता हूं, मुझे ये बताइए ये कितना हुआ? 3। बात हो रही है लीप ईयर की। फरवरी में कितने ऑड डेज होंगे? 1, वेरी गुड। मार्च में कितने ऑड डेज होंगे? 3, वेरी गुड। कितने ऑड डेज हो गए? ठीक है। अब इसका मतलब जो अप्रैल का कैलेंडर शुरू होगा वो बिल्कुल जनवरी के जैसा होगा या नहीं होगा गाइस? होगा? एवरीवन यस और नो? होगा? अच्छा, अब रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। देखिए, होता क्या है कि किसी भी लीप ईयर में जनवरी एंड अप्रैल
का कैलेंडर सेम होगा, लेकिन 30th तक, क्योंकि अप्रैल तो 30 डेज का होता है। यस और नो? राइट? एनी डाउट? ओके, so guys, in any leap year the calendar of January and April will be same but till 30th। ऐसा, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि यार मैं एक बार ऐसा भी देखना चाहता हूं, क्या कोई ऐसा ईयर भी है जिसमें 31 डेज हो और वो बिल्कुल जनवरी के जैसा सेम कैलेंडर शो कर दे? ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखिए, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 7, दिस इज 7, 14 हो गया। जनवरी एंड जुलाई का कैलेंडर एग्जैक्टली सेम होगा फ्रॉम 1st to 31st। ओके एवरीवन? So in a leap year, the calendar of January and April is same till 30th, and the calendar of January and July is exactly same from 1st to 31st। ठीक है? अब देखिए क्या है, आप अगर नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे, 31, 29, 31, 30, 31, 30 और 30, 30, 30, 30, 30, इसका एक इसको दे दीजिए 30, सो दिस इज 182। ठीक है, और ये कितना हुआ? 31, 29, 60, देन 31, दिस 91। देखिए एवरीवन, देखिए, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे ये बताइए कि ये जो कंडीशन है ये 91 डेज के बाद भी आएगी और यही सेम कंडीशन 182 डेज के बाद भी आएगी। यस और नो? बट राइट, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 91 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? आप पहले इस क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद वो 2 पॉइंट लिखिएगा कि कैलेंडर जो है लीप ईयर के अंदर जनवरी एंड अप्रैल का कैलेंडर सेम होगा 30 तारीख तक, एंड लीप ईयर के अंदर जनवरी एंड जुलाई का कैलेंडर एग्जैक्टली सेम होगा 31st तक। ठीक है, एंड आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 91 डेज। और आप एक काम और भी कर सकते हैं, मतलब आप अपने इसमें फोन पे चेक कर सकते हैं, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। 24 वॉज अ लीप ईयर, 2024। आप अपने फोन पे चेक कर सकते हैं कि जनवरी एंड अप्रैल का कैलेंडर एग्जैक्टली सेम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जनवरी एंड जुलाई का कैलेंडर एग्जैक्टली सेम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अभी चेक कर सकते हैं आप, राइट नाउ, 2024 वी टॉक अबाउट। 2024 जनवरी एंड अप्रैल का कैलेंडर चेक लीजिए आप, एंड जनवरी एंड जुलाई का कैलेंडर चेक कर लीजिए। चेक करिए, अभी का अभी चेक करिए। वेरीफाइड? वेरीफाइड? ओके, देख लिया है? ठीक है।
Okay. Ganesh is saying, sir, I checked, it is correct. Okay, that's good. Ganesh saying, super question, sir. Okay. Everyone, आपको एक बात बताता हूँ. ये क्वेश्चन यूपीएससी के पीएससी में नहीं पूछा गया है, बट यूपीएससी ने ये सवाल पूछा है कहीं. अब देखिए, इसी क्वेश्चन को अगर यूपीएससी अपने सेट फॉर्मेट में जैसे पूछता है, वैसे पूछना चाहेगा तो पता है क्या करेगा? यूपीएससी बोलेगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन अ लीप ईयर, one Friday is on 13th and another Friday is on 13th. ठीक? The minimum number of days between them. अब आपको वो 3 या 4 ऑप्शन देगा. ठीक है? द मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन देम. तो कभी आपको ऐसा लग सकता है कि फरवरी होती है 28 दिन की, आपने लिख दिया 28. सबसे पहला ऑप्शन उसने लिख दिया 28. ठीक? दूसरा ऑप्शन उसने लिखा लेट्स से 182. तीसरा ऑप्शन लिखा उसने 91. अब उसके बाद उसने कोड्स बनाए 1 and 2, 2 and 3, 1 2 3, राइट? या नन ऑफ देम, व्हाटएवर. ठीक है? सेम क्वेश्चन बट इन अ डिफरेंट लॉजिक, इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. करेक्ट एवरीबॉडी? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में टफ हो जाएगा. ठीक? क्योंकि वहां पे कुछ लोग 28 भी सिलेक्ट कर सकते हैं. समझिए बात को. ये बिल्कुल डायरेक्ट था, वो डिफरेंट हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट एवरीवन? राइट? ओके. अब आपको बताऊं, जिस पर्टिकुलर ईयर में टीडीएस में शायद ये सवाल पूछा गया था, या आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कौन सा एग्जाम है, बट जिस पर्टिकुलर ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसी पर्टिकुलर ईयर में सीएससी में कौन सा सवाल पूछा गया था, वो मैं आपको दिखाता हूं. ठीक है? और आप देखिएगा दोनों का रिलेशन, और आप देखिएगा कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन बैंक है वो किस हद तक कनेक्टेड है पूरी तरह से. ठीक है? गाइस, शैल वी मूव नाउ? ओके. ये हो चुके हैं. इसको पढ़िए. 2020, ये क्वेश्चन 2020 में ये सीएससी में पूछा गया, और 2020 में वही एक क्वेश्चन किसी और एग्जाम में पूछा गया. एक बार पढ़िए जरा इसको, और इसका आंसर बताइए जस्ट बाय रीडिंग द क्वेश्चन. ऑल ऑफ यू, क्या आंसर है? एवरीवन, देखिए, एक लीप ईयर में जनवरी का कैलेंडर जुलाई के जैसा होता है एग्जैक्टली. ठीक है, जानते हैं आप लोग. अब क्वेश्चन को पढ़िए. ठीक है? तो इन अ पर्टिकुलर ईयर 12th जनवरी इज संडे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 12th जनवरी नहीं होना चाहिए था. अच्छा ठीक है, 12th जनवरी ठीक है, सही है. तो 12th जुलाई इज संडे इफ द ईयर इज अ लीप ईयर. जनवरी एंड जुलाई का कैलेंडर एग्जैक्टली सेम होगा, राइट? अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये बात नहीं पता है तो ऐसा नहीं है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. आप कर देंगे. कुछ ना कुछ काउंट करेंगे ऐसे 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 करके, और आप कर देंगे. ठीक है? लेकिन क्या एग्जाम में वो चीज एडवाइजेबल है? एग्जाम में सिर्फ यू जस्ट हैव टू लुक द क्वेश्चन एंड सॉल्व, दैट्स इट. मैं पहले भी शायद अपने ओरिएंटेशन सेशन में ये बात बोल रहा था कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने. क्वेश्चन सॉल्व होते जाते हैं खुद से. वो आपकी यहाँ की प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि उस 2 आवर्स में क्या होने वाला है आपके साथ, राइट? उस 2 आवर्स में ऐसा भी हो सकता है कि जब आप हॉल से बाहर निकलें तो आपको लगे कि आपको पता नहीं अंदर आपके साथ क्या हो रहा था, क्या टॉर्चर चल रहा था अंदर. ऐसा लगता है कभी कभी कि क्या टॉर्चर किया जा रहा था आपको. क्वेश्चंस ऐसे थे कि बिल्कुल सर में दर्द हो गया. ऐसा होता है कभी कभी, राइट? गाइस, दैट डिपेंड्स कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो. आप सरदर्द यहाँ पे ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो. यहाँ पे आप जितना पेन लोगे ना, वहां पे आप उतना पेन रिलीव्ड फील करोगे एक्चुअली. क्लियर नाउ? अब क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, आपकी अवेयरनेस पे पूरी तरह से बेस्ड है, प्रोवाइडेड आपने कितना ऑब्जर्व कर रखा है चीजों. एवरीवन फाइन नाउ? ठीक है.
ओके। धनश्री सिंह, व्हाट इफ इट इज नॉट अ लीप ईयर? धनश्री, वो ठीक है, नॉट लीप ईयर होगा तो कुछ और होगा, लेकिन आप समझ रहे हो क्वेश्चंस का लेवल क्या है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? कैलेंडर को ऑब्जर्व करिए अच्छे से बस, ठीक है? आज इतना ही रखें, मुझे लगता है कि ज्यादा ना हो जाएगा, ठीक है? आपको भी लग रहा होगा कि ज्यादा हो रहा है, राइट? तो गाइस ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, राइट? और बाकी जो है, टुमारो यू हैव द क्लास एट 9 AM शार्प, ठीक है? और आप लोग प्लीज 9 बजे आ जाइएगा कल, शार्प एट 9, विल बी स्टार्टिंग शार्प एट 9, ठीक है? ओके एवरीवन, ऑलराइट गाइस, एंड विल बी स्टार्टिंग, विल बी रिज्यूमिंग द क्लास फ्रॉम हियर इटसेल्फ, ये भी आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से शुरू होगा, एंड टुमारो विल बी discussing some more concepts and then some more questions. All right. Hope you liked the session, guys. Like the class, guys. ठीक है? Okay. Okay. Thank you, everyone. सर मुझे तो मजे आ रहे हैं, क्लास और लेते रहिए। नहीं देखिए, हम आपके मजे के लिए यहाँ नहीं आए, देखिए। चलिए, ओके एवरीवन, थैंक यू गाइस, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।